everybody, welcome to 2022 and to the channel. I wish you a very happy new year. Thank you so much for giving me so much of love. We just hit 1k subscribers a few weeks back. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक महीने के अंदर हम 600 से 1k पे जंप ले लेंगे and it's all because of your love, your support. Please keep supporting me, keep loving me and keep telling me which kind of videos would you like to watch in the future. आज की वीडियो में I am going to share with you and take you through what I did for my reset for 2022. How did I get ready for 2022 or something like that. But before we move on, make sure you save the date of the next Monday because next Monday आने वाली है एक बहुत ही important video for all the CLAT aspirants out there who are waiting for a video जो अपलोड होगी तो अपलोड होने वाली है नेक्स्ट मंडे को. प्लीज़ सेव द डेट, डू नॉट मिस इट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, कम्युनिटी टैब में जाओ, वहाँ पे एक पोस्ट है, उसको देखो, उसके नीचे क्वेश्चन, उस आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लिख दो बिकॉज वहाँ से आंसर होने वाली हैं चीज़ें. तो मेक श्योर यू डू दैट. एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So the very first thing I started with was to note down what exactly I had to do while planning as well. So different things like rescheduling, cleaning, goal setting and routine work setup had to be done. And yes, that gave me a checklist about what all has to be covered. The next thing that I did after getting a checklist ready is to write which kind of goals am I supposed to set up, like spirituality, health, self-care, self-help, skill set, etc. in different aspects. Like you can see, thoda messy hai, but this is perfectly fine. So yeah. Then थोड़ा सा aesthetic करने की कोशिश की थी spread को ताकि interest आए करने में. उसके बाद मैंने गोल्स लिखना चालू किया. डिस्क्लेमर, दिस कैन टर्न आउट टू बी टॉर्चरिंग. सॉरी. हाँ, तो द मेन एम वाइल आई वाज राइटिंग माई गोल्स एंड बिफोर दैट वाज टू मेक श्योर दे आर ऑल रियलिस्टिक. बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना लिखूँ एंड रिमेंबरिंग कि लास्ट ईयर मेरे क्या एस्पिरेशंस रहे, इस साल क्या है, एंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू दैट. मोस्ट अवेटेड थिंग ऑफ द ईयर क्लीनिंग वाला पार्ट आ गया और थोड़ा डस्टिंग से चालू किया हियर एंड देयर एंड आई डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम माय ब्रदर बिकॉज ही वाज बिजी अटेंडिंग हिज क्लासेस. इवन आफ्टर ही वाज डन अटेंडिंग हिज क्लासेस ही डिड नॉट रियली हेल्प मी आउट. ठीक है, तो मिरर साफ किया बिकॉज मिरर हमेशा गंदा रहता है एंड देन आई एम नॉट एबल टू टेक मिरर सेल्फीज एज वेल. पर बीच में तंग करने के लिए ही इज ऑलवेज हियर. उसके बाद yes, this had to be cleared or yeah, that's my reaction. That's exactly my reaction. I know, right? This looks really cluttered because it is. Then ठीक है, मैंने स्टार्ट किया करना. सारी चीज़ों को बाहर निकाला. I dusted it, पूरा प्रॉपरली साफ़ किया कपड़े से एंड देन धीरे धीरे उस चीज़ों को सेग्रीगेट किया which were the things that I really needed. Oh हाँ यार, काफ़ी irrelevant चीज़ें भी मिल जाती हैं पूरे साल में, ऐसा होता रहता है. I made sure I'm not keeping things that I don't need. I actually removed a lot of things जो कि थोड़ा बहुत I was ambiguous about use करूँगी कि नहीं, but I made sure कि अभी नहीं चाहिए इसलिए अभी तो हटा ही दूँगी. And that's what I did. जो पुराने पेपर्स पड़े हुए थे, जो बुक्स अब मुझे यूज़ में नहीं आने वाली थी, डायरीज, नोटबुक्स, पेन्स एंड ऑल ऑफ दैट, सब कुछ अलग हटा दिया ताकि आई हैव एग्जैक्टली मिनिमल थिंग्स इनसाइड everything like that. These are some notebooks and file that I need. These I no longer need. I don't need these books as well because my semester is over. These are some empty diaries and notebooks that I'm going to put inside the bed because I, as of now, do not need them. Those are the things that I'm going to use for the next semesters only. I'm not going to use
notebooks. Yeah, I'm not going to use notebooks. Some clutter here and there. ये मुझे यूज़ में नहीं आना है, ये मुझे फेंकना है. उसके बाद नींद. And here we come to the next part, is to deep clean the digital parts of the whatever. Sorry. हाँ, तो कुछ चीज़ें थी जैसे academics रिलेटेड वो हटाई, कुछ फन वीडियोस भी मिल गए थे बीच में और कुछ वीडियोस जो हटाने के थे, लेकिन वो जब फाइनली सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की बटन दबाना इज़ सो सेटिस्फैक्टरी. यस, डन. Then I started cleaning the windows and the glass because काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे and I felt like ठीक है, साफ़ हो जाएंगे तो मुझे ही मज़ा आएगा, स्टोरी डाल पाऊँगी. सॉरी. हाँ, तो थोड़ा लगी मेहनत but I did clean them and ठीक. This particular segment required the least efforts because these are the reasons. तो ज़्यादा क्लटर नहीं था यहाँ पे, बहुत मिनिमल चीज़ें थी, इनको कुछ नहीं करना था, बस डस्टिंग के लिए बाहर निकालना था ताकि आई कुड क्लीन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. And here comes the villain of the story. कपड़े ठीक करना. I just hate this task because it takes so much of time. But yeah, again, removing everything, dusting them properly, and then putting them back into place. That's it. Yes, I did it. I don't know about you, but I really find it better than before. A lot. Closet check. Yes. Yes, room done. और फ़ोन भी हो गया था because I shoot on phone. That's why फ़ोन का decluttering shoot नहीं हो पाई थी. But yes, finally the checklist was over. पूरी चीज़ में सबसे बुरी चीज़ जो मुझे करने के लिए लगती है ना, वो है क्लोजेट को वापस से जमाना. क्योंकि क्या होता है ना, एक बार या देखो हम नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब आप लोग का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो है, ये नहीं करती मैं पूरे साल ऑलमोस्ट. जब छुट्टियां होती हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होते हैं, जब मम्मा डांटने लगती हैं, तब वी डू दैट. तो आई वॉन्टेड कि हाँ, साल के पहले हफ्ते में आई जस्ट गेट इट क्लटर फ्री. तो मैंने वो किया. यूजुअली मैं गाने सुनते सुनते और ऐसे करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस बार आई मेड इट अ पॉइंट कि आई एम नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट आई एम डूइंग द वर्क सो दैट इट गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड पूरे माइंड के साथ कि हाँ, मुझे ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ नहीं रखनी. तो तो आई वॉज फाइनली डन विद दैट. और उसके बाद इतना रिलैक्सेशन मिला है. रूटीन मैंने बनाया है, गोल्स सेट किए हैं एंड काफ़ी रियलिस्टिक गोल्स सेट किए हैं इस बार. आई रियलाइज कि ना पिछले टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था ना कि, तो रियलिस्टिक गोल्स सेटअप किए हैं. दिस इज़ माई गोल्स वाला थिंग. आई हैव डिवाइडेड माई गोल्स इनटू एकेडमिक्स, स्पिरिचुअलिटी, सोशल मीडिया, हेल्थ एंड स्किल सेट. ठीक है, तो जस्ट लाइक इंक्रीजिंग cleanliness and skincare routine etc, daily physical workout for health. Academics के अंदर like
one book every month, because I am not very fond of reading. I want to develop that habit. उसके बाद like daily studies and all of that, spirituality के लिए at least 11 spiritual books in a year. देखो तो ये वाला चीज़. उसके बाद आई हैव रूटीन्स. तो रूटीन के लिए ऑल्सो आई डिवाइडेड इनटू वीक, मंथ एंड डे. और मतलब एक वीक के अंदर मुझे ये चीज़ें तो करनी है. जैसे 4 से 5 भगवद गीता क्लास मुझे लेनी है. आई हैव टू वर्क आउट 5 days एटलीस्ट. तो आई हैव केप्ट इट फ्लेक्सिबल. उसके अलावा मंथ में जैसे कि आई हैव टू रीड 1 बुक पढ़नी है. इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें डाली है वो है नो सोशल मीडिया एट ऑल, या नो फ़ोन एट. मतलब आई ट्राई फ़ोन का. कभी कभार होता है कि फ़ोन की ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ जाती है, लेकिन नो फ़ोन टिल 9 AM इन द मॉर्निंग. सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं. दिस इज़ हाउ आई डिड अ रीसेट फॉर 2022. हाउ डिड यू सेट अप? या आपने करा है कि नहीं अभी तक? नहीं किया है तो कमेंट छोड़ो, पहले कर लो, ठीक है. बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आंखें बंद करके कहीं भी भागना, किसी चीज़ से टकरा जाना इज ऑफ नो यूज़. सेट अ रियलिस्टिक, मिनिमल बट रियलिस्टिक गोल फॉर योरसेल्फ, ताकि आपको एक चीज़ पता हो कि हाँ मैंने साल के पहले कुछ डिसाइड किया था. रियलिस्टिक रखना. ऐसा मत रखना कि आई वॉन्ट टू गेट 95% डायरेक्टली, लेकिन हाँ ऐसे रखो जो इट्स लाइक स्टेप्स फॉर यू. इट्स नॉट डायरेक्ट कि ये पहाड़ पे पहुंचना, लेकिन उस पहाड़ पे पहुंचने के लिए रास्ता होना चाहिए, तो स्टेप के रखना, ठीक है. तो डू सेट अप अ रूटीन, अ गोल फॉर योर सेल्फ, एंड I'll meet you the next Monday. Next Monday is an important video coming up, so make sure you subscribe. Don't miss that video. Thanks for remaining till the end. Keep watching. Thank you for 1K subscribers. Happy New Year. Meet you the next Monday. Till then, stay tuned. Thanks for watching. Namaste.